क्वेश्चंस सीखने आए ना आप. सी, learning questions, learning how to frame the questions is itself a very useful and a skillful activity in the entire English language, because if you are able to frame questions, that means you are and you have covered 50% of your English learning. Yes, it's very important, it's an integral part, so you should not miss this topic, and I'll make sure that you should understand this topic matlab completely 100%, and you should be able to make a frame question on your own after watching this video. So stay tuned, and so that you should have a burning question for an English speaker next time. So let's start. First of all, I'll tell you there are 5 different kinds of questions in our English grammar, and these are the yes no questions. That are you happy? Yes, I'm happy. Are you feeling okay? Yes, I'm feeling okay. Are you going to market? No, I'm not going to market. See, simple yes no questions. First type, that is the yes no questions. The next is, of course, I'll tell you, I'll take all these questions one by one, and I'll tell you how to frame the questions and how to answer the question even. But I'm just telling you in short that there are different, there are 5 kinds of questions in English grammar. The next is the WH questions, that is the who, what, when, where, how, why. Which, who is for person, what and which for the things, and when is for the time, where is for location, how and for how things happen, why is for the reason. Indirect questions, sometimes we can't ask anything to the person in front of us, because sometimes the person standing in front of us is very elder or senior, and we can't ask directly something, so we have to use the indirect question in our conversation. The next is the tag questions. Tag questions, of course, they are kind of the negative questions only, but there's just a little bit difference between the two, in which we use the not, like isn't it, like that, aren't you, haven't you. And basically these 2 questions are used for the confirmation purpose. Hopefully you have understood there are 5 different kind of questions: yes no questions, WH questions, indirect questions, tag questions, and the negative questions. Now we will take all these questions one by one in detail, so that you should know that how to frame the questions. Okay, so let's continue with our yes no questions. Yes no questions. So first of all, let me tell you, this is the most basic type of questions, because the answer of these questions is in the yes or no. That's it. It's very simple kind of questions. Just a small tip that I have told you, that I'll share some grammar tips also while framing the question. जब मैंने अपने क्वेश्चंस को फ्रेम करना सीखा था फ्रॉम माय स्कूल टीचर, उन्होंने मुझे क्या बताया कि जब भी आपको क्वेश्चन को फ्रेम करना है, व्हेनेवर यू हैव टू फ्रेम द क्वेश्चन, आपको क्या करना है, आपको उसका पहले आंसर ढूंढना है. आंसर से आप उसको जल्दी से फ्रेम कर पाओगे. तो एक ये छोटी सी ट्रिक है, तो एक पहले आंसर बनाओ, फिर आंसर से क्वेश्चन बनाओ. जो सो आई एम शेयरिंग द सेम ट्रिक विद यू. Suppose yes no questions, they are the basic type of question that start with the helping verb. अब ये क्या होगा, ऑक्सिलरी वर्ब को हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं. हेल्पिंग, सपोज आपने, मैं एज्यूम करती हूँ आपने टेंसेस और वर्ब का चैप्टर किया होगा, बट फिर भी मैं आपको बता देती हूँ. ऑक्सिलरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब होते हैं, लाइक इज, एम, आर, वर, वॉज, हैज, हैव. तो ये अपने आप में एक मेन वर्ब की भी जगह लेते हैं, और ये हेल्पिंग वर्ब भी होते हैं. सपोज मैं बोलती हूँ आई एम प्लेइंग, तो प्लेइंग तो मेन वर्ब हो जाएगा, इसमें जो मेरा मेन एक्शन है, और आई एम प्लेइंग, एम जो होगा, ए एम, वो मेरा यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा. तो इन दैट सेंस ऑक्सिलरी वर्ब हमारा हमेशा सबसे पहले आता है क्वेश्चन को फ्रेम करने में. सबसे हम पहले लेते हैं ऑक्सिलरी वर्ब, देन हम लेते हैं सेकेंड नंबर पे सब्जेक्ट. सब्जेक्ट वो होता है जो कि एक्शन कर रहा है, जो वर्ब को कर रहा है, जो वो होता है सब्जेक्ट. और मेन वर्ब, जैसे मैंने आपको बताया था आई एम प्लेइंग, तो प्लेइंग इज द मेन वर्ब, थर्ड हो जाएगा. मतलब आप इसको याद रखिए, वर्ब, सब्जेक्ट, फिर वर्ब. पहला ऑक्सिलरी वर्ब, फिर सब्जेक्ट, देन दी अगेन दी मेन वर्ब. लास्ट में आ जाएगा ऑब्जेक्ट. वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट. कैसे याद करेंगे इसको, वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट. अगर किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है, तो एक कोई अदर इंफॉर्मेशन कुछ ना कुछ तो होगी उसमें.
अगर उसमें मेन वर्ब नहीं या उसमें कुछ भी ऑब्जेक्ट नहीं है तो। अब मैंने आपको क्या एक टिप बताई थी, जब भी आपको क्वेश्चन बनाना है पहले आपको उसका आंसर बनाना है। इट इज विंडी आउटसाइड, इट इज विंडी आउटसाइड, मतलब कि बाहर बहुत आंधी वाला स्टॉर्मी सा एक वहां पे वेदर है। इज इट विंडी आउटसाइड, मैंने क्या आपको बताया था, ऑक्सिलरी वर्ब। पहले क्या आ गया, नंबर 1 आ गया, फिर मैंने बोला इट, सब्जेक्ट आ गया, नंबर 2, देन मेन वर्ब आ गया, मेन वर्ब आ गया हमारा ये वाला 3, और टुडे आ गया हमारा अदर इंफॉर्मेशन में आ गया कि एक एडिशनल इंफॉर्मेशन हमारे पास है 4। ठीक है, अब मैं इसको प्लेस कर देती हूँ, इज इट विंडी आउटसाइड और इज इट विंडी टुडे। सपोज मैंने पहले मैंने आउटसाइड बोला था, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इज इट विंडी टुडे और इज इट विंडी आउटसाइड, कि बाहर क्या विंडी है, तो मैंने क्या बनाया, इज इट विंडी आउटसाइड। अब इसके आप आंसर में क्या बोलोगे, यस इट इज विंडी आउटसाइड और इट इज विंडी टुडे सपोज। ओके, नेक्स्ट लेते हैं, ही कैन बेक। कैन आ जाएगा हमारा ऑक्सिलरी वर्ब, ही आ जाएगा सब्जेक्ट, ही कैन, कौन बेक कर सकता है, ही इज अ सब्जेक्ट, बेक इज द मेन वर्ब। यस, वर्ब सब्जेक्ट वर्ब, कैन ही बेक। आई एम रेडी, अब इसमें एम आई रेडी तो नहीं बोलेंगे ना, अपने आप को हम नहीं बोलेंगे आई एम रेडी। तो इसका आप क्वेश्चन देखो क्या होगा, अगर मैं किसी को बोल रही हूँ आई एम रेडी, तो हमसे उन्होंने क्या पूछा होगा, एम की जगह होगा आर यू रेडी, एम इज एम आर का क्या हो जाएगा आर, क्योंकि यहाँ पे यू आया है इसलिए यहाँ पे आर आएगा, आर यू रेडी, आर यू रेडी। देन आई विल कॉल यू टुमारो, विल अगेन आ गया ऑक्सिलरी वर्ब, देन आ गया हमारा सब्जेक्ट विल, यू कॉल हमारा आ गया मेन वर्ब, देन मी टुमारो, मी इज ऑब्जेक्ट, अगेन यहाँ पे मी हमारा ऑब्जेक्ट आ गया, विल यू कॉल मी टुमारो। अगर आपको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब, अगर आपको इसका क्लास चाहिए देन डू टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। मैं सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब का सारा एक हाउ टू फ्रेम द सेंटेंसेस की वीडियो ही अलग से बना दूंगी, सो दैट आपको वो भी टॉपिक क्लियर हो जाए। बट मैं ये एज्यूम करके चल रही हूँ आपको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब का प्लेसमेंट आपको आती होगी, दैट हाउ टू कंपोज अ सेंटेंस। सो विल यू कॉल मी टुमारो, सी मैंने अब कितनी इजीली इसको बना दिया। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछने लगी हूं, नीना प्लेस गिटार, गिटार कह लेते हैं, कैसियो, हारमोनियम, व्हाटएवर, ठीक है। हाँ, इसमें एक क्वेश्चन मार्क भी आता है, जब क्वेश्चन हम बनाते हैं तो ये क्वेश्चन मार्क आ जाता है लास्ट में, फुल स्टॉप की जगह, ये बहुत ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन मार्क भी आ जाता है। नीना प्लेस गिटार, अब आप इसमें सोचेंगे कि यहाँ पे तो हमारा है ही नहीं हेल्पिंग वर्ब, तो हम कैसे बनाएंगे मैम, तो आप इसको क्या बनाओगे, शी इज, ये प्लेस है, दैट मीन्स यहाँ पे हमारा आपने टेंसेस में किया होगा डज नीना प्लेस गिटार। देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ गया, डज मैंने यहाँ पे प्लेस की हेल्प से मैंने जाना कि यहाँ पे डज आएगा। अगर यहाँ पे कोई नीना की जगह प्लूरल होगा तो यहाँ पे डू आ जाएगा, तो अदरवाइज यहाँ सिंगुलर है तो यहाँ पे डज आएगा। डज नीना प्लेस गिटार, यस नीना प्लेस गिटार। तो मैंने यहाँ पे लिया डज हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट लिया यहाँ पे, फिर यहाँ मैंने मेन वर्ब लिया, यहाँ पे फिर मैंने ऑब्जेक्ट लिया। होपफुली आपको ये क्लियर हो गया होगा कि नीना प्लेस गिटार से मैंने यहां से डज ले लिया। ये सिंपल येस नो क्वेश्चंस हैं, आपको सिर्फ अपना ये आपको ऑक्स वर्ब सब्जेक्ट मेन वर्ब ऑब्जेक्ट का ये वाला फॉर्मूला बहुत अच्छे से याद करना है। आप कोई भी क्वेश्चन को फ्रेम कर सकते हो जो येस नो वाले क्वेश्चंस होंगे या कोई सिंपल सेंटेंस के क्वेश्चंस होंगे। ऑक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट मेन वर्ब ऑब्जेक्ट, ऑक्सिलरी वर्ब वर्ब सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, वर्ब सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। आपको सिर्फ एक सेंटेंस लर्न करना है, यू विल बी एबल टू नो, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा दैट हाउ टू फ्रेम दी येस नो क्वेश्चंस। होपफुली आपको येस नो क्वेश्चंस क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे, WH क्वेश्चंस, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है, घबराना नहीं है,
बहुत इजी टॉपिक है, कुछ भी नहीं करना, एक फॉर्मूला याद करना है, फॉर्मूला में आपको एक उसकी वैल्यूज पुट करनी है, आप सिंपली इस चीज को याद कर पाओगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चंस इज WH क्वेश्चंस। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको, मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इसमें आती होगी, बट दे आर वेरी वेरी इजी। इस टॉपिक को जस्ट बहुत ध्यान से सुनो, स्टे फोकस्ड, पेन पेंसिल को एक बार साइड पे रख दीजिए, देयर इज नो नीड टू राइट बिकॉज एवरीथिंग इज ऑन द यूट्यूब एंड ऑन द इंटरनेट। समझने की बात है, यू आर हेयर जस्ट टू अंडरस्टैंड। तो आपको वो आप काम करना है। आपको होपफुली फर्स्ट टॉपिक समझ में आ गया होगा, उसका फॉर्मूला भी समझ में आ गया होगा, बट वो फॉर्मूला भी आपको माइंड में रखना है। वो बहुत काम का है कि ऑक्सिलरी वर्ब, देन सब्जेक्ट, देन मेन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट या फिर उसकी अदर इंफॉर्मेशन, वो आपको बहुत काम आने वाला है। कभी भी आपको फ्रेमिंग क्वेश्चन फ्रेमिंग की एक्टिविटी होगी तो आपको वो बहुत ही यूजफुल होगा, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। WH questions. First of all, let me tell you, they are the open questions. They are the open-ended questions. Close-ended questions कौन से होते हैं? Close-ended होते हैं जिसको हम कहते हैं ना कि हमने किसी ने क्वेश्चन पूछा, उसका आंसर दिया, बस दैट्स फिनिश, तो वो क्लोज हो गया क्वेश्चन। इज इट रेनिंग आउटसाइड? आपने बोला यस, बात खत्म, क्लोज हो गया। WH वाले क्वेश्चंस होते हैं ओपन एंडेड, बिकॉज उसमें कुछ हमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी मिलती है थ्रू WH, याद रख लेना। तो इसलिए इनको हम ओपन क्वेश्चंस बोलते हैं कि इसमें कॉन्वर्सेशन आगे से आगे बढ़ती चलती जाती है, कि हमने कोई क्वेश्चन पूछा, उसने आंसर दिया, उसके बाद क्वेश्चन हम पूछ सकते हैं, क्यों, कहाँ, कैसे, क्या। तो ये एक कॉन्वर्सेशन का एक मेन पार्ट रहते हैं हमारा। तो हमारे जो क्वेश्चंस हैं, पहले इसका फॉर्मूला मैं आपको बहुत इजीली समझा देती हूँ, बहुत इजी है। आपको ऑक्सिलरी वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब एंड द ऑब्जेक्ट प्लस अदर इंफॉर्मेशन, ये वाला आपको फॉर्मूला लर्न था। आपने करना क्या है, जस्ट WH क्वेश्चन वर्ड या फ्रेज को आपने डालना है कि या हु आएगा, व्हेन आएगा, या वेयर आएगा, या व्हाई आएगा। तो सिर्फ आपने इस चीज को डालना है और कुछ भी नहीं करना। मेन बेसिक फॉर्मूला आपका सारा सेम रहेगा कि हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस द ऑब्जेक्ट या फिर अदर इंफॉर्मेशन, वो बिल्कुल डिट्टो सेम रहेगा, कुछ उसमें चेंज नहीं रहेगा। अब मैं आपको बता देती हूँ वॉट और विच हम यूज करते हैं व्हेन यू हैव टू आस्क अबाउट द थिंग। मैं कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रही हूँ, जब भी हम इसको ये वाला साइन यूज करते हैं, सपोज मैंने यहाँ पे मैं बीच में भूल गई टू डैश अबाउट, मैंने ये वाला साइन यूज किया, तो एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, दिस इज नोन एज दी कैरेट साइन, CARET, कैरेट साइन। सो चलो लेट्स कम बैक टू आवर टॉपिक। व्हेन इज टू आस्क अबाउट द टाइम, व्हेन इज टू आस्क अबाउट द टाइम कि कब हुआ। हाउ टू आस्क अबाउट द वे थिंग्स हैपन, कि हाउ मच और हाउ मेनी, हाउ ऑफन। ठीक है, तो इसलिए कि कैसे वो चीज हुआ, कैसे हुआ, कहाँ हुआ, कितना हुआ, लाइक दैट, हाउ मच। व्हाई टू आस्क फॉर द रीजंस। देन हु टू आस्क अबाउट द पर्सन, जब हम किसी पर्सन के लिए यूज कर रहे हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है, हु फॉर द पर्सन, व्हाट एंड विच फॉर द थिंग्स, बेसिकली नॉन लिविंग थिंग्स ही होगा। व्हेन तो पता ही है, बहुत इजी है, टाइम के लिए यूज करते हैं। देन हाउ टू आस्क अबाउट दीज थिंग्स। ये मेन आपको ये वाले अगर आप लर्न कर लेते हो और ये फॉर्मूला लर्न कर लेते हो, दैट मीन्स आपका फ्रेमिंग क्वेश्चंस का टॉपिक भी 50 to 70% हो गया। यस, बिकॉज जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, टैग क्वेश्चंस, इंटरैक्ट क्वेश्चंस, नेगेटिव क्वेश्चंस, बहुत इजी है, कुछ भी नहीं रखा है उसमें। मेन टॉपिक ये था, दैट मीन्स यू आर ओवर विद योर क्वेश्चन फ्रेमिंग पार्ट। बिकॉज बहुत ज्यादा अच्छा टॉपिक है, थोड़ी सी डिफिकल्टी आती है, बट समझने की बात है, ध्यान से समझने की बात है, कुछ और है ही नहीं इस टॉपिक में। दिस इज द मोस्ट इजी टॉपिक, अगर आप इजीस्ट हो जाएगा आपके लिए अगर आप इसको थोड़ा सा ध्यान से समझोगे। नाउ लेट्स स्टार्ट। अब मैं एक लाइन लेती हूँ, कोई एक इंफॉर्मेशन लेती हूँ, ठीक है। मैंने लिया राहुल, नेहा, वॉट एवर, राहुल इज प्लेइंग बास्केटबॉल इन द पार्क। मैंने एक सिंपल इंफॉर्मेशन ली है। अब मैं इस फॉर्मूला से ये सारे क्वेश्चंस फ्रेम करने वाली हूं। राहुल इज प्लेइंग बास्केटबॉल इन द पार्क, सिंपल।
इस इंफॉर्मेशन से मैं सारे क्वेश्चंस आपको फ्रेम करके बताऊंगी. सो हैव पेशेंस. आप देखना, मैं एक सेंटेंस आपको भी दूंगी और आप खुद भी फ्रेम कर पाओगे, पक्का. आई एम श्योर अबाउट दैट सेम. सो लेट्स स्टार्ट नाउ. मैंने आपको क्या समझाया था कि राहुल इज प्लेइंग बास्केटबॉल इन द पार्क. सो अब हमने क्या करना है, हमने सेंटेंसेस बनाने हैं. क्वेश्चन, वी हैव टू फ्रेम द क्वेश्चन विद दिस फॉर्मूला दैट द WH क्वेश्चन वर्ड ऑफ फ्रेज with auxiliary verb plus subject plus main verb with object or the other information. अब हमें पिछले अगर हमने जो yes no हमने किया था, हमें समझ में आ गया था. like is auxiliary verb, राहुल subject, main verb, और इसमें हम लिखेंगे playing in the park में basketball in the park हम लिख सकते हैं basketball in the park with the other information. ठीक है. अब हमारा फर्स्ट मैंने क्या बताया था, what और which. मैं इसमें बोल रही हूँ, अब मैंने बोला है क्या खेल रहा है वो, बास्केटबॉल खेल रहा है. वॉट इज राहुल प्लेइंग इन द पार्क, क्या राहुल खेल रहा है, बास्केटबॉल खेल रहा है. वॉट इज राहुल प्लेइंग इन द पार्क. मैंने वॉट और विच में से वॉट चूज किया. ओके. नेक्स्ट, अब मैं विच अभी आपको मैं समझाती हूँ कि विच मैंने क्यों नहीं लिया, दैट आई विल टेल यू. उसके बाद हम चलते हैं. मैंने लास्ट टाइम मैंने वेयर मैंने आई स्किप्ड वेयर बाय मिस्टेक, तो मैं ये ले रही हूं. इन द पार्क, वेयर इज राहुल प्लेइंग बास्केटबॉल इन द पार्क, और वेयर इज राहुल प्लेइंग इन द पार्क. हम दोनों ले सकते हैं, हम बीबी भी ले सकते हैं. दैट इज द बास्केटबॉल इन द पार्क. व्हेन इज राहुल. अब मैंने व्हेन इसलिए नहीं लिया बिकॉज इसमें लिया नहीं, इसमें इंफॉर्मेशन में इट्स नॉट रिटन, इट्स नॉट मेंशन दैट राहुल इज प्लेइंग बास्केटबॉल इन द पार्क इन द इवनिंग. या मैं बोल सकती हूँ राहुल इज प्लेइंग बास्केटबॉल इन द इवनिंग, तो मैं बोलूंगी व्हेन. पर टाइम नहीं था, चलो हम मेंशन करें. सपोज टाइम भी है तो अगर तो हम बोलेंगे व्हेन इज राहुल प्लेइंग इन द पार्क. मतलब मेन जो मेरा मैटर है बताने का, ऑक्सिलरी वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये हमारा सेम रहेगा. जस्ट एक WH क्वेश्चन वर्ड ऑफ फ्रेज आ जाएगा. आप मुझसे पूछ सकते हो कि मैम आप क्वेश्चन वर्ड तो ठीक है, WH व्हेन व्हाट हो गया, फ्रेज क्या हो गया. लेट मी एक्सप्लेन यू. अगर मैं पूछती हूँ कि कहती हूँ आपको राहुल इज प्लेइंग बास्केटबॉल इन द पार्क सिंस 2 hours और फॉर 2 hours लाइक दैट, तो मतलब मैंने एक फ्रेज लिया. हाउ राहुल इज प्लेइंग नहीं बोलूंगी, दैट वुड बी इनकरेक्ट. मतलब कितनी देर से खेल रहा है, तो हाउ लॉन्ग. यहाँ मैंने लिया ना फ्रेज, जहां आपको बताया था WH क्वेश्चन वर्ड ऑफ फ्रेज, तो ये एक फ्रेज बन जाता है. टू, हाउ लॉन्ग राहुल इज प्लेइंग, how long is Rahul playing in the park. Again, how long, WH is your auxiliary verb, Rahul is your subject, then playing is main verb, और basketball object आ जाएगा, other information in the park आ जाएगा. Then why आ जाएगा. Why is Rahul playing basketball in the park, कि राहुल बास्केटबॉल क्यों खेल रहा है पार्क में, कुछ और क्यों नहीं खेल रहा है. ठीक है. Why is Rahul playing basketball in the park. Then who is playing basketball in the park, मतलब कौन खेल रहा है. अब देखो, who is playing basketball in the park, Rahul. Why is Rahul playing basketball in the park, just to get fresh. How long, since 2 hours. When is Rahul in the park, when is Rahul playing basketball in the park, in the evening. Where is Rahul playing basketball in the park, इसमें तो इन द पार्क आ गया. वेयर इज राहुल प्लेइंग बास्केटबॉल, हम इसमें बोलेंगे बास्केटबॉल. व्हाट इज राहुल प्लेइंग इन द पार्क, इसका आंसर आ जाएगा बास्केटबॉल. सी, मैंने किसी भी यस या नो नहीं किया. दैट मीन्स ये एक ओपन एंडेड क्वेश्चन है कि वो क्या खेल रहा है, क्यों खेल रहा है, किसके साथ खेल रहा है, लाइक दैट. ठीक है. अब राहुल इज प्लेइंग फ्रॉम द रेड बास्केटबॉल इन द पार्क, मतलब रेड बास्केटबॉल. अब मैंने क्या हुआ यहाँ पे, यहाँ मैंने किस पे स्ट्रेस किया कि कौन सी बॉल से खेल रहा है. पहले क्या था मैंने कि क्या खेल रहा है, बास्केटबॉल खेल रहा है. ओके. फ्रॉम विच बॉल इज राहुल प्लेइंग इन द पार्क. फ्रॉम विच बॉल, मैंने आपको बताया था कि विच हम थिंक के लिए यूज करते हैं. अब मैंने वर्ड नहीं लिया, WH फ्रेज लिया. From which ball is Rahul playing in the park. आपको जो प्रॉब्लम आती है ना, व्हाट वेन में तो मुझे लगता ही नहीं आती होगी. आपको प्रॉब्लम कहाँ आती है,
जब भी फ्रेम करते हो ऑक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट मेन वर्ब ऑब्जेक्ट और इस वाले फॉर्मूला में आती है, दैट्स इट। मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट आई हैव नोटिस अमंग माय स्टूडेंट्स इवन कि वो वेयर राहुल इज बोल देंगे, वेयर और व्हेन राहुल इज बोल देंगे। आपका जो फॉर्मूला है यही है कि पहले आपको ऑक्सिलरी वर्ब लगाना है, फिर आपको सब्जेक्ट लगाना है, फिर मेन वर्ब। और उस अगर ये WH क्वेश्चन है, क्लोज ओपन एंडेड क्वेश्चन है, तो आपको WH लगाना है, दिस इज WH। तो उसमें कुछ फर्क नहीं है, क्लोज एंड और ओपन एंडेड में फॉर्मूला सेम रहेगा, बस एक WH का फर्क आ जाएगा। तो आपने WH लगा के इज राहुल, ऑक्सिलरी वर्ब देन सब्जेक्ट, ऑक्सिलरी वर्ब देन सब्जेक्ट, ऑक्सिलरी वर्ब देन सब्जेक्ट। आपने सिर्फ इतना करना है। हाउ लॉन्ग है तो उसमें टाइम मिसिंग है, वाई मिसिंग है तो रीजन मिसिंग है, हु अगर है तो द नेम ऑफ द पर्सन, द नेम ऑफ द सब्जेक्ट इज मिसिंग दैट टाइम। अगर व्हेन मिसिंग है तो टाइम, वेयर है तो प्लेस, व्हाट है तो मतलब क्या खेल रहा है, दैट मीन्स दी ऑब्जेक्ट या अदर इंफॉर्मेशन मिसिंग है, विच है तो फिर अगेन अदर इंफॉर्मेशन मिसिंग है। तो आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आती है, आई नो दैट। प्रॉब्लम जहां आती है आपको आती है कि ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब देन ऑब्जेक्ट या फिर अदर इंफॉर्मेशन। इस फॉर्मूला को अपने बिठा लो अंदर माइंड में। मुझे लगता ही नहीं कि आपको कभी डिफिकल्टी आएगी किसी भी क्वेश्चन को फ्रेम करने में। अगर आपने इतना कर लिया ना, दैट मीन्स आपने 90% क्वेश्चन फ्रेमिंग की एक्सेस कर ली। जो 10% जब रहती है वो मोस्टली स्पोकन पार्ट में यूज होती है हमारी, दैट इज टैग, इनडायरेक्ट क्वेश्चंस एंड द नेगेटिव क्वेश्चंस। हम उसको भी अभी कवर अप करके फिनिश कर देंगे, ये 2 मिनट का काम रह गया हमारा। सो let's continue with the indirect questions now. The next kind of question is the indirect questions. डायरेक्ट क्वेश्चंस का पहले एग्जांपल लेती हूँ, फिर आपको इनडायरेक्ट बहुत इजीली समझ में आएगा। सपोज कई बार क्या होता है, किससे बात करना, डायरेक्टली कुछ पूछना, दैट सीम सो ब्लंट और मतलब कि रिस्पेक्टफुल नहीं लगता है, इट डजंट लुक्स ग्रेसफुल समटाइम्स। सो इन दैट केस वी हैव टू आस्क द इनडायरेक्ट क्वेश्चन, इज दैट सो? नाउ डायरेक्ट क्वेश्चंस, दैट इज दी वेयर इज द बुक स्टोर। सपोज हम अपने पेरेंट्स से बात करें, सिबलिंग से बात करें, दैट डजंट मैटर। बट कई बार हम किसी स्ट्रेंजर से बात कर रहे हैं, एल्डर से बात कर रहे हैं, किसी सीनियरिटी लेवल पे हम किसी पर्सन से बात कर रहे हैं, देन वी हैव टू आस्क क्वेश्चन इन जस्ट अ लिटिल बिट ग्रेसफुल मैनर। देयर वी हैव टू यूज द थर्ड काइंड ऑफ इनडायरेक्ट क्वेश्चंस। ऑफ कोर्स इसका फॉर्मूला सेम रहेगा, बहुत डिफरेंट नहीं है, थोड़ा सा इन्वर्जन में मैं आपको एक बता दूंगी ताकि इसको और अच्छे लेवल पे आपको बात करने में इजी रहेगा। सपोज मैं किससे बात करती हूँ, किसी स्ट्रेंजर से, वेयर इज द बुक स्टोर, तो सीम्स लिटिल बिट ब्लंट, है ना। तो अगर मैं किससे पूछती हूँ, कुड यू प्लीज टेल मी वेयर द बुक स्टोर इज, है ना। अगर मैं पूछती हूँ डू यू नो और कुड यू प्लीज टेल मी वेयर इज द बुक स्टोर, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं ये पूछती हूँ कि कुड यू प्लीज टेल मी वेयर इज द बुक स्टोर, वेयर इज द बुक स्टोर, हाँ वेयर इज द बुक स्टोर, तो कोई भी गलती नहीं है। वेयर में जो मैंने आपको WH का रूल बताया था, ऑक्सिलरी वर्ब आ गया, द बुक स्टोर सब्जेक्ट आ गया, देन हमारा मेन वर्ब ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है तो ऑफ कोर्स तो हम उसको छोड़ देंगे। तो कुड यू प्लीज टेल मी वेयर इज द बुक स्टोर, तो ये भी ग्रामेटिकली गलत नहीं है। बट अगर हमने इनडायरेक्ट क्वेश्चन जो हमने यूज किया, ये मेनली हमने स्पोकन पार्ट के लिए यूज किया है, तो इसको हम थोड़ा सा इसको हम चेंज करने वाले हैं कि कुड यू प्लीज टेल मी वेयर द बुक स्टोर इज। यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब हमारा जो स्टार्टिंग में था एंड में चला जाएगा, तो थोड़ा सा पोलाइट फॉर्म देने के लिए और थोड़ा ग्रेसफुल लुक देने के लिए। बट गलत ये भी नहीं है ऑफ कोर्स, बट इसमें हम इसकी इन्वर्जन कर सकते हैं। कुड यू प्लीज टेल मी और डू यू नो वेयर द बुक स्टोर इज, तो थोड़ा सा पोलाइट लगता है बात करने में। तो इनडायरेक्ट क्वेश्चंस में और कुछ भी नहीं था, दैट्स इट। सेम फॉर्मूला समथिंग, बस एक ऑक्सिलरी वर्ब को आपको एंड में लेके आना है स्टार्टिंग के बजाय, और कुछ भी नहीं है। आपको सेम व्हाट व्हेन सब कुछ सेम यूज करना है, कुछ नहीं करना। ये थोड़ा सा हमारी स्पोकन पार्ट में ये यूज होता है। नेक्स्ट हमारा है टैग क्वेश्चन और नेगेटिव क्वेश्चन, मैं वो भी आपको आज क्लियर कर देती हूँ। फोर्थ क्वेश्चन फॉर्म इज दी टैग क्वेश्चन। वेरी सिंपल, नथिंग, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इट्स वेरी इजी। टैग क्वेश्चन, फर्स्ट ऑफ ऑल टैग क्वेश्चंस होते क्यों हैं, दैट इज फॉर द कंफर्मेशन कि आपको समझ में आ गई बात, या कुछ कंफर्म करना हो, या कुछ हमें अंदर तक बात को जानना है कि यस सामने वाले को बात हम कर रहे हैं समझ में आ गया, सिंपल। इसमें हमने पहले जो हमारा सब कुछ सेम रहेगा,
isn't it वगैरह सब कुछ सेम रहेगा, बट एक सेंटेंस हमारा बीच में फर्स्ट नंबर पे सेंटेंस आ जाएगा. सपोज यू विल ब्रिंग द केक. ठीक है, अब मैंने बोला वॉन्ट यू, दिस आर दी टैग, इसको बोलते हैं टैग क्वेश्चन. यू विल ब्रिंग द केक, यहाँ पे पहले मैंने सेंटेंस लिखा, देन यहाँ पे वॉन्ट. वॉन्ट यू मीन्स मतलब विल नॉट यू होता है, इसको हम बोलते हैं वॉन्ट यू इन द कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म. वॉन्ट यू तो विल नॉट यू, इसमें भी सेम रहा, WH पहले रहा, फिर उसके बाद नॉट, नॉट के बाद इसके बाद आ गया यू, दैट इज द सब्जेक्ट. ठीक है, तो हमारा कुछ भी डिफरेंट नहीं रहा, उसमें सेम हमने फॉर्मूला रखा, बट इसमें यू विल ब्रिंग द केक, वॉन्ट यू, इट इज रेनिंग नाउ, इजंट इट. अब आपने जो समझने वाली बात है, अगर यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव फॉर्म में आ जाएगा. मैंने बोला योर फादर वॉन्ट बी कमिंग टूडे, विल ही, तो यहां मैंने वॉन्ट लिया, तो यहां मैंने पॉजिटिव ले लिया. अगर मैंने यहाँ पॉजिटिव लिया तो मैंने यहाँ पे नेगेटिव ले लिया. यहां मैंने इट इज रेनिंग नाउ पॉजिटिव लिया, तो यहां मैंने इसको नेगेटिव ले लिया. बस इसमें इतना समझना है कि हमने कंफर्मेशन किया है. इसमें सेंटेंस आएगा, फिर उसके बाद आएगा जो उसमें हमने ऑक्सिलरी वर्ब यूज किया है उसका नेगेटिव फॉर्म. अगर मैंने बोला इट इज, इजंट इट, इट विल, वॉन्ट इट, और अगर मैं कहती हूँ इट वॉज, वॉजंट इट, और इट वर, वॉन्ट यू, और जो भी सब्जेक्ट होगा. तो बहुत इजी है टैग क्वेश्चन. जो नेगेटिव क्वेश्चंस हैं वो भी इसके साथ सिमिलर है, थोड़ा सा छोटा सा डिफरेंस है, दैट आई विल एक्सप्लेन यू. तो लास्ट होगा नेगेटिव क्वेश्चन. इसके साथ आपके क्वेश्चन फ्रेमिंग का एक बड़ा टॉपिक बहुत अच्छे से होपफुली समझ में आ गया है. अगर अभी भी नहीं आया, इफ यू वांट मी टू टेक एनी, कुछ आपको पर्टिकुलर टॉपिक पे कहीं प्रॉब्लम आ रही है, व्हाट पे, व्हेन पे, विच पे, या कोई टेंसेस पे कहीं पे आपको नेगेटिव क्वेश्चंस बनाने में, देन डू टेल मी थ्रू द कमेंट बॉक्स. आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर द सेम. सो लेट्स स्टार्ट विद द नेगेटिव क्वेश्चंस नाउ. लास्ट इज द नेगेटिव क्वेश्चंस. बहुत ईजी है, अगेन नथिंग लाइक अ रॉकेट साइंस है. अगेन इसमें हमने एक कॉन्ट्रैक्शन ऐड करना है. जब मैंने आपको समझाया था कि एक ऑक्सिलरी वर्ब प्लस इसमें सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट या फिर अदर इंफॉर्मेशन, इसका फॉर्मूला भी सेम रहेगा नेगेटिव क्वेश्चंस का. इसमें नेगेटिव क्वेश्चंस में क्या आएगा, डिडंट यू हियर द न्यूज. इसमें डिडंट क्या होगा, ऑक्सिलरी वर्ब, यू इज द सब्जेक्ट, हियर इज द मेन वर्ब, द न्यूज इज द ऑब्जेक्ट. hasn't he called you back yet. hasn't यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे hasn't आ जाएगा. ऑक्सिलरी वर्ब has not, that means या did not होता है, इसका मतलब इसमें कॉन्ट्रैक्शन आएगा. he is a subject, called is the main verb, that is the back, yet that is the other information. कुछ भी नहीं है, सेम है, बट इसमें नॉट मतलब कि नेगेटिव क्वेश्चंस जहाँ पे हम नॉट यूज करते हैं, और उसमें कोई फर्क नहीं है, सिंपल ही क्वेश्चंस होते हैं, सेम फॉर्मूला होता है हर एक में. बस WH में हमने सिर्फ WH पहले लगाना है, बाकी फॉर्मूला हमारा सारा सेम रहेगा. आपको मेन फॉर्मूला याद रखना है, ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट या फिर अदर इंफॉर्मेशन. आपको कोई भी क्वेश्चन फ्रेम करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसका आंसर बनाइए, देन आप उसमें से क्वेश्चंस आप उसमें से निकाल सकते हैं. कोई भी डिफिकल्टी आने वाली ही नहीं है, बहुत इजी है. सिर्फ आपको आंसर बनाना है, आंसर से क्वेश्चन बनाना है. आपको अर्ली थोड़ी मतलब एट द बिगनर्स लेवल आपको थोड़ा सा आपको डिफिकल्टी आएगी, आई थिंक सो, कि आपको पहले एक आंसर बना के फिर क्वेश्चन बनाना पड़ेगा. आपको एक हैबिट हो जाएगी. जब आपको हैबिट हो जाएगी तो जैसे आप क्वेश्चन, आप एक सेंटेंस फ्रेम करते हैं, वैसे ही आप एक क्वेश्चन को भी फ्रेम कर सकते हैं. होपफुली यू हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक वेरी वेल, एंड दैट अगर आपको समझ अभी कुछ नहीं आया, कहीं डाउट है, तो यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स. ऑफ कोर्स आई विल आंसर द सेम. अगर फॉर ए प्रैक्टिस पर्पस या फॉर माई सेटिस्फेक्शन पर्पस, आप हर एक टाइप का, हर 5 के 5 टाइप का एक क्वेश्चन आप बना के उसमें आप लिखिए कमेंट बॉक्स में, so that I can understand that yes, you have understood the topic very well. कहीं डाउट है, do ask, but stay tuned, keep learning, happy learning.